اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا۔ اس سورہ کا نام سورہ فرقان ہے اور آج سورہ فرقان الحمدللہ شروع ہو رہا ہے۔ فرقان کے معنی ہے حق و باطل میں فرق کرنے والی کتاب، فرق کرنے والی۔ تو قرآن کا ایک نام فرقان بھی ہے اور اس سورہ کا نام بھی سورہ فرقان۔ یہ سورہ مکی ہے اور جیسا کہ پہلے بھی عرض کیا جا چکا تھا کہ مکی سورتوں میں پورے کا پورا تقریباً عقائد کا بیان ہے اور تھوڑے پچھلے انبیاء کے اور ان کی نافرمان امتوں کے عذاب کا ذکر ہے۔ ہماری شریعت کے احکام سب مدینے میں نازل ہوئے ہیں، مدینہ شریف۔ تو یہ سورہ بھی مکے میں نازل ہوا ہے اور مکی سورت کا یہ خاص خصوصیت ہے کہ اس میں ہمارے عقائد پر بہت تفصیلی بیان کیا گیا ہے۔ تو اس پہلے رکوع میں 3 بنیادی عقائد کا تفصیلی ذکر کیا گیا ہے۔ پہلے تو توحید باری تعالیٰ ہے جو سب سے پہلا عقیدہ ہے، پھر رسالت ہے اور پھر قرآن پاک ہے کہ یہ اللہ کا کلام ہے، اس کے بارے میں تفصیلی بات آئی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں بڑا بابرکت ہے وہ پروردگار، بڑی بابرکت ہے وہ ذات جس نے نازل کی فرقان کو، یعنی قرآن کو نازل کیا جس نے اللہ عبدہ سے مراد محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اللہ عبدہ اپنے بندے پر لیکون للعالمین نذیرا، تاکہ وہ ہو جائے، لیکون مانے تاکہ وہ ہو جائے سارے عالموں کے لیے ڈر سنانے والے، یعنی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرنے والوں کو اللہ کے عذاب کا ڈر سنانے۔ آگے ارشاد ہے الذی لہ ملک السماوات والارض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شریک فی الملک وخلق كل شیء فقدرہ تقدیرا۔ الذی لہ ملک السماوات والارض، وہی ہے وہ ذات جس کی حکومت، ملک مانے سلطنت، حکومت جس کی، سماوات والارض زمینوں آسمانوں میں اسی کی سلطنت ہے، اسی کی حکومت ہے، اسی کی بادشاہت ہے، وہی خالق کائنات ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں اس میں یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ ولم یتخذ ولد ولم یکن لہ شریک، اس کے لیے کوئی اولاد ہے نہ اس کے لیے کوئی اس کا شریک ہے، کوئی اس کا ساتھی، اس کے برابر والا کوئی نہیں ہے۔ تو یہ پہلا عقیدہ ہمارا توحید کا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نہ کوئی اولاد ہے نہ ماں باپ، جیسا کہ سورہ اخلاص میں بڑی تفصیل سے اس بات کی تشریح کر دی گئی کہ اللہ تعالیٰ کے برابر کوئی نہیں ہے، نہ ہو سکتا ہے۔ فی الملک، اس کی بادشاہت، اس کی سلطنت میں، اس کے تصرفات میں کوئی بھی اس کا شریک نہیں ہو سکتا۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی مزید اور تعریف فرمائی جا رہی ہے کہ وہ ذات وہ ہے جس نے خلق کل شیء فقدرہ تقدیرا۔ خلق مانے پیدا کیا، کل شیء تمام چیزوں کو، کائنات کی ذرے ذرے کی ہر چیز، چھوٹی سے چھوٹی چونٹی سے لے کر ہاتھی تک، تمام سارے انسانوں، ہر چیز کو پیدا کرنے والا، کائنات کی اس کی ذات کے سوا جتنی چیزیں ہیں سب چیزوں کا پیدا کرنے والا پروردگار ہے۔ وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ، وہی ہے جس نے ہر چیز کو پیدا کیا۔ پھر آگے شاد فَقَدَّرَهُ تَقْدِيرًا، فَقَدَّرَهُ بس مقرر کر دیا اس نے، تقدیرہ ہر چیز کا اندازہ، یعنی کائنات میں جتنی چیزیں اللہ تعالیٰ نے بنائی ہیں ساری چیزوں کا ایک اندازہ مقرر کرے، بے اندازہ بے حساب کوئی چیز نہیں، بلکہ سب بہترین تخلیق بنائی گئی ہے۔ کائنات ایک ایک چیز غور کریں گے تو معلوم ہوگا، جیسا کہ جو بہت بڑے بڑے درخت ہوتے ہیں اس کو پانی دینے کا انتظام نہیں رہتا، خود بخود اس کی جڑیں زمین سے پانی لے لیتی ہیں۔
ऐसे ही बेहिसाब एक इंसान की पैदाइश को ले लीजिए कि तो किस तरह से माँ के पेट में बच्चा परवरिश पाता है और किस तरह बतदरीज उसके आज़ा बढ़ते रहते हैं, और माँ की पेट में भी उसके तमाम आज़ा जब 7-8 महीने का हो जाता है हमल, तो उसके पूरे आज़ा काम करने लगते हैं, उसका दिल भी पंपिंग करने लगता है, उसके तमाम आज़ा काम करने लगते हैं। इतना जो माँ के पेट में इंतजाम होते रहता है, और हर चीज जब इंसान को बनाया परवरदिगार से जितना गौर करेंगे, सारी उम्र भी गौर करें तो उसका पूरा अंदाजा हम नहीं लगा सकते कि परवरदिगार आलम ने किस तरह का बेहतरीन तरीके से हमारी पैदाइश फरमाई। कि हमारी एक आंख ही को ले लीजिए कि आंख के ऊपर पपोटे बनाए आंख की हिफाजत के लिए, और पलके बनाई जो पलक हमारे बेइरादा पलक झपकती रहती हैं, और उसकी वजह से हमारी आंख की सफाई होती रहती है हर किस्म के गर्द और गुबार वगैरह से। तो इस तरीके से हमारे हाथ पाँव का तूल एक अंदाजे से बनाया, ऐसे ज्यादा लंबे हाथ नहीं हो गए कि जो तकलीफ दे हो जाए, ना इतने छोटे कि कोई काम ना कर सके। ऐसा ही हमारा सर, जितना जितना हम सोचते जाएंगे, खुद हम अपने में देख लेंगे तो कितनी अलग कुदरत की निशानियां हैं कि जो हमारे लिए किस कदर बेहतरीन अंदाज में बनाई गई है हर चीज। और उसके सिवा कायनात के जितने जानवर अल्लाह ने पैदा किए, जो भी पैदा किए हैं, सबको रिस्क का पहुंचाना भी वो पत्थरों के नीचे भी, पहाड़ों के नीचे भी रिस्क पहुंचाते रहता है परवरदिगार। हर इंसान, हर जानदार को उसकी जरूरत के मुताबिक जो उसको जरूरत है वो रिस्क, करोड़ों अरबों खरबों लातेदाद जानदार है दुनिया में जानवर, और जो भी है सबके लिए उसको मुकर्ररा वक्त पर उसको रिस्क पहुंचाना। जैसा कि लफ्ज रब के मायने हैं, जिस शख्स को जिस वक्त जिस चीज की जितनी जरूरत हो उस वक्त वो चीज उसको मुहैया करना, ये रब है। जैसा कि हमारी जिंदगी के लिए, हमको जिंदा रहने के लिए, सारे जानदारों को जिंदा रहने के लिए हवा की जरूरत है, सांस लेने के लिए, तो हवा का इतना बेहतरीन इंतजाम है कि वो कोने कोने में, हम कमरे का दरवाजा भी बंद कर ले तो हमारे पास अंदर हमारी सांस लेने की उतनी हवा मौजूद रहती है। हर जानदार को जो पत्थरों के नीचे भी रहते हैं, जहां भी रहते हैं, तो उनकी सांस लेने के लिए हवा का उस वक्त पहुंचाना। फिर हवा के जो अज्जा हैं वो भी मुनासिब है, जैसा कार्बन डाइऑक्साइड है या ऑक्सीजन है, ये सब भी हस्बे मकदार है। अगर ऑक्सीजन ज्यादा होगी तो इंसान जल जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा होगी तो सांस दम घुटने लगेगा। ऐसा ही बहुत सी चीजें हैं इंसान की परवरिश, उसकी पैदाइश, उसकी परवरिश के लिए अल्लाह ताला ने बेहतरीन इंतजाम हर चीज। तो हमको हवा को खरीदने की जरूरत नहीं पड़ती, बल्कि जितनी हमको जो जरूरत है उसका इंतजाम हमको करना नहीं है, हमारा रब खुद हमारे लिए, हर जानदार के लिए उसके मकाम पर हवा को पहुंचाते रहता है। ऐसा ही पानी है कि पानी भी जहां भी पूरी दुनिया में जिस जगह भी चले जाओ, पानी होता जाता है हर मकाम पर। ये ऐसी ऐसी कुदरती पाइपलाइन है जमीन के अंदर कि जहां भी हम खोदेंगे वहां पर पानी निकल जाता है। तो पानी के फराहम के लिए भी कुछ इंसान को ऐसी बेइंतहा तकलीफ नहीं है कि वो कर ही नहीं सकता है। सर सबसे हर चीज जो देखो तो मालूम होता है कि ये चीज सबसे ज्यादा है, सबसे ज्यादा अहम ऐसे हर चीज है परवरदिगार आलम की अता करदा। मगर इंसान का दिमाग है, जो दिमाग बनाया उसने, और दिमाग को क्या बनाया कि वो दिमाग दुनिया में आज जितनी मौजूदात हम देखते हैं, जितनी साइंस की तरक्की देखते हैं, जितने उसके मौजूदात देखते हैं, कि ये सब इंसान का दिमाग है। कि दिमाग ऐसा बनाया परवरदिगार आलम ने कि वो दिमाग से इंसान क्या क्या करता है, चांद पे तक चले गया इंसान। ऐसी बेहिसाब मिसालें हैं, अगर हम अल्लाह ताला की कुदरत कामिला को गौर करना चाहे तो, और अल्लाह ताला के तमाम कुदरत को, उसकी तमाम सिफात को गौर करने का हुक्म है। अल्लाह ताला की जात के बारे में गौर करने का हुक्म नहीं है। हरगिज ये नहीं सोचना चाहिए कि परवरदिगार आलम आसमानों पर है, उसके लिए कोई जगह की कैद नहीं है। अक्सर छोटे बच्चों को बता के ऊपर बताते हैं अल्लाह ऊपर है, ऐसा हरगिज नहीं है। अल्लाह, ये हरगिज नहीं बोलना चाहिए। कोई भी बात, लोग बातों बातों में ये कह देते हैं कि ऊपर वाला जाने,
ایسے الفاظ نہیں بولنا ہے، ہرگز یہ نہیں بولنا ہے کہ اللہ تعالیٰ اوپر ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کے لیے کسی جگہ کا تعین کرنا منع ہے کہ وہ ہر وقت ہے، ہر جگہ ہے بھی نہیں بولنا ہے۔ یہ بھی غلط بات ہو جاتی کہ وہ ہر جگہ کیسے موجود، اس کی قدرت ہے ہر جگہ، اس کی نگاہ ہے ہر جگہ، ہر جگہ ذرے ذرے کو وہ دیکھتا ہے، ذرے ذرے پر اس کا تصرف ہے، مگر وہ ہر جگہ اس کی ذات کے ساتھ موجود نہیں ہے، بلکہ قدرت کے ساتھ موجود ہے، اس کے رحمت کے ساتھ موجود ہے، اس کی نگاہ سے، اس کے خود سے وہ موجود ہے۔ ایسا موجود نہیں ہے جیسا کہ تو اللہ اس سورے کی تفسیر میں بڑی تفصیل آئی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ اگر وہ ہم پہلے تو ہم جیسے اللہ تعالیٰ خود فرما دیا کہ ہم اللہ تعالیٰ کے احسانوں کو چاہے تو بھی گن نہیں سکتے، تو ویسا ہی پروردگار عالم کی اتنی تعریف ہے، اس کی اتنی بڑی ایسی شان ہے کہ وہ ہر چیز اندازے سے مقرر فرمائی۔ ہمارا منہ دیکھیے، منہ میں دانت دیکھیے، زبان دیکھیے کہ کیسا اندازے سے ہے، نہ زیادہ زبان بڑی ہے جو دانتوں میں آ کے قطرے جا سکے، کان مناسب جگہ پر مناسب طریقے سے، ہر چیز جتنا ہم خود اپنی ذات میں غور کریں گے تو جیسا کہ ایک شعر ہے، نظم عالم سے ہے خود خالق عالم کا ثبوت، نظم عالم سے ہے خود خالق عالم کا ثبوت، کہہ رہا ہے یہ قرینہ ہے قرینے والا۔ تو اللہ تعالیٰ ہر چیز کو، کائنات کا ذرہ ذرہ اس کی قدرت کی گواہی دے رہا ہے کہ وہ ایسا قادر مطلق ہے، ایسا قدرت والا ہے کہ وہ ہر چیز اس کی قدرت کے تحت، اس کی سلطنت، اس کی بادشاہت میں چل رہی ہے۔ پھر آگے ارشاد ہے وَاتَّخَذُوا مِن دُونِهِ آلِهَةً، ایسا پروردگار ہونے کے باوجود بھی بعض بیوقوف ایسے ہیں جو اللہ کے سوا دوسروں کو معبود بنائے ہوئے ہیں۔ وَاتَّخَذُوا مانے بنا لیا ہے، لے لینا، پکڑ لینا، مِن دُونِهِ اس کے سوا، آلِہَ مانے معبود۔ تو ایسے بھی لوگ ہیں دنیا میں جو ایسے قدرت والے، ایسے پروردگار کو چھوڑ کر جو خود ان کا بھی خالق ہے، دوسرے اپنے ہاتھ سے بنائے ہوئے چیزوں کو وہ معبود بنا لیتے ہیں، حالانکہ وہ معبودوں کے بارے میں ارشاد ہے لا یخلقون شیئا وهم یخلقون ولا یملکون لانفسهم ضرا ولا نفعا ولا یملکون موتا ولا حیاتا ولا نشورا۔ لا یخلقون، وہ کسی چیز کو پیدا نہیں کر سکتے، وہ ایسے ہیں، شیئن کسی چیز کو بھی، اور ایک مکھی تک، مچھر تک نہیں بنا سکتے، کچھ بھی نہیں بنا سکتے۔ وہم یخلقون، اور نہ وہ خود پیدا ہوئے ہیں، ان کو بھی اللہ کی قدرت سے اللہ نے پیدا کیا ہے، تو وہ نہ خود پیدا ہوئے ہیں، نہ کسی چیز کو پیدا کر سکتے ہیں، اور نہ لا یملکون، یملکون مانے ملک، قدرت، نہ وہ قدرت رکھتے ہیں لانفسہم، اپنے آپ کے لیے قدرت نہیں رکھتے، وہ ذرا ولا نفع، نہ کسی نقصان سے بچنے کی قدرت ہے، وہ اپنے آپ کو نہیں بچا لے سکتے، اگر کوئی بیماری ان کے اوپر حملہ آور ہو گئی یا کوئی ہو گئی تکلیف تو وہ اپنے ذات کو خود نہیں بچا لے سکتے، ولا نفع، نہ وہ نفع دے سکتے ہیں، نہ نقصان سے بچا سکتے ہیں۔ ایسے لوگوں کو، ایسی چیز جس کو انہوں نے اپنے ہاتھوں سے بنائی ہے اور اس کو معبود سمجھتے ہیں، ان کی عقل ان کو بالکل بیوقوفی کی بات ہے۔ پھر آگے ارشاد ہے ولا یملکون موتا ولا حیاتا، نہ وہ طاقت رکھتے ہیں نہ قدرت رکھتے ہیں، یملکون وہ نہیں طاقت اور قدرت رکھتے موت کی نہ حیات کی، نہ کسی کو مارنے کی نہ کسی کو زندہ کرنے کی، ولا نشورا، نہ کسی کو اٹھانے کی۔ تو ایسی بے بس چیز جس کو انہوں نے خود اپنے ہاتھوں سے بنائی ہے، اس کو خدا مان لینا ہے، تو یہ مانتے ہیں وہ، تو یہ کس قدر ان کے لیے ہنسی کی بات ہے، اور وہ ایسے پروردگار عالم کا انکار کرتے ہیں جو ساری چیزوں کا پروردگار ہے۔ پھر آگے ارشاد ہے وقال الذین کفروا ان ھذا الا افک افتراہ وعانہ علیہ قوم آخرون، اور وہ کہتے ہیں کفار، قال الذین کفروا، کہتے ہیں وہ لوگ جو کافر ہیں، یہ کہتے ہیں وہ ان ھذا الا افک، اس قرآن پاک کے بارے میں کہتے ہیں وہ یہ ایک بہتان ہے، نفتراہ جس کو افطرا مانے گھڑ لینا، جس کو انہوں نے خود گھڑ لیا ہے،
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में कहते हैं कि ये कुरान जो वो पढ़ के सुनाते हैं ये वो उन्होंने खुद घड़ लिया है, ये बुहतान है, नाउजुबिल्लाह। और लिखा है आगे, वआनहु अलैहि कौमुन आखरून, और उनकी इआनत की है, मदद की है इस मामले में। क्या कहते हैं कुफार? कुरान को वो खुद घड़े हैं और कुरान के घड़ने में उनकी मदद की है, अलैहि उनकी, कौमुन आखरून एक दूसरी कौम ने उनकी मदद की है। तो इस तरफ उनका इशारा है कि यहूद और नसारा जो अहले किताब है शायद उनसे वो मदद लिए हैं, ये उन लोगों का ख्याल है। फिर आगे इरशाद है, फक़द जाउ ज़ुल्मन व ज़ूरा, बस तहक़ीक़ के उन लोगों ने बहुत ही बड़ा जुल्म किया है और ज़ूरा, और बहुत सफेद झूठ, ज़ूर माने झूठ को कहा जाता है, बहुत बड़ी सफेद झूठ बोली है उन लोगों ने, ऐसी बात की है उन लोगों ने जो किसी के अकल में भी नहीं आ सकती। वक़ालू असातिरुल अव्वलीन, और वो ये कहते हैं कुरान के बारे में, असातिर माने किस्से कहानियां, असातिरुल अव्वलीन ये पहले लोगों के किस्से कहानियां, अक्ततबहा फहिया तुमला अलैहि बुकरतन व असीला, और ये उन्होंने लिखवा लिया है या लिख लिया है, फहिया उसको, तुमला जिसकी वो तिलावत करते हैं, अलैहि उसकी, बुकरतों व असीला सुबह और शाम उसकी तिलावत करते हैं और लोगों को करने का हुक्म। इस तरीके से ये एतराज कुरान पाक पर भी है और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर भी है। इस आयत शरीफा में दो उन लोगों ने बड़े बेवकूफ़ी के एतराज़ात करे हैं। पहले तो अल्लाह की ज़ात पर एतराज़ किया उन लोगों ने, उसके बाद ने फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर एतराज़ किया कि वो खुद करे, पढ़ लिए है कुरान पाक, वो खुद लिखे हैं, खुद उनका लिखा हुआ है। हालांकि उनको मालूम है कि 40 साल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उनके सामने गुजरे हैं, 40 साल में वो किसी उस्ताद से पढ़े नहीं है, ना किसी स्कूल गए, ना कोई कहीं गए न जाकर कुछ पढ़े, ना कोई पढ़ाने वाले के पास उन्होंने पढ़े। फिर ऐसी किताब जिसकी मिसाल पूरी जमाना नहीं पेश कर सकती, फसाहत और बलागत के जो बड़ा बलागत का, अरबी ज़बान को उम्मुल अलसिना कहा जाता है कि सारी दुनिया की सारी जबानों की माँ, असल जड़, के माने असल और जड़ के है, सारी दुनिया की जबानों की माँ, ऐसी फसी व बलीग जबान में ऐसा कलाम ला के सुनाना, ये खुद आप घड़ लिए हैं, ये कैसा यकीन कर सकते हैं वो, हालांकि आप पढ़े नहीं, आपको बज़ाहिर तो उम्मी कहा जाता है, मगर के असल लफ्जी माने ये है, असल और जड़ के माने हैं। जैसा कि सूरह फातिहा को उम्मुल किताब कहा जाता है, यानी पूरी कुरान की असल असास सूरह फातिहा है, ऐसा ही शहर मक्का को उम्मुल खुरा कहा जाता है, यानी दुनिया की सारी बस्तियों की असल। क्योंकि आप सबको मालूम हो गई ये बात कि काबतुल्लाह पूरी दुनिया के बीचा बीच में काबतुल्लाह है, जैसा जिसको जमीन की नाफ कहा जाता है, कि पूरी दुनिया के पूरे बीच सेंटर में काबतुल्लाह है। इसलिए है कि वहां से पूरी दुनिया में दीन इस्लाम पहुंचना है, वो दीन इस्लाम पहुंचाने की जगह। तो इस तरीके से उनके माने हैं, असल और जड़ के माने हैं। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम उलूम के असल और जड़ है। हालांकि उनके सामने बैठ के आप 40 साल में एक वक्त भी उन्होंने नहीं देखा कि किसी के पास वो पढ़े हैं। फिर ऐसा कलाम पेश करना जो इंसान उसको समझने से आजिज है। अरब के बड़े बड़े फुसहा और बुलगा दंग है इस बात पर कि ऐसा कलाम कोई इंसान नहीं पेश कर सकता। तो ऐसा कलाम पेश करने से ये आप खुद आपकी रिसालत पे भी दलालत है और कुरान पाक पे भी दलालत है। मगर वो लोग इस कुरान पाक का भी इनकार करते हैं और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत का भी इनकार करते हैं। तो कहते हैं वो कुरान पाक के बारे में, वो सब कहते हैं असातिरुल अव्वलीन, ये तो पहलों के किस्से हैं, क्योंकि इस कुरान में पिछले अंबिया के वाक़यात जिक्र किए गए थे, तो इसलिए वो लोग ऐसा कहते हैं। और ये कहते हैं कि इसको उन्होंने लिख लिया है या लिखवा लिया है किसी से,
जिसकी वो तिलावत करते हैं, सुबह शाम तिलावत करते हैं। फिर आगे इरशाद है, कुल अनज़लहुल्लज़ी यअलमु सिर्रा फिस समावाति वल अर्ज़ इन्नहु काना गफूरुर रहीमा। आप फरमा दीजिए, कुल जहाँ पर भी आया उसके मायने ये होते हैं, आप फरमा दीजिए, आप फरमा दीजिए। अंज़लहु नाजिल किया है उसको, यानी कुरान पाक को। यालमु सिर्रा फिस समावाति वल अर्ज़, तो यालमु जो जानता है, सिर माने सारे राजों को, तह के अंदर भी, जमीन के तह के अंदर भी, और आसमानों के ऊपर भी, पूरी उसकी जात के सिवा पूरी कायनात के राजों को सिर्रा वो जानता है, फिर समाते वाला जो कुछ जमीन और आसमानों में है। फिर आगे इरशाद है, इन्नहु काना गफूरुर रहीमा, बेशक वो बड़ा बख्शने वाला, बड़ा रहम करने वाला है। तो उसने अपने रहम और करम से हम सब की हिदायत के लिए ऐसा कलाम नाजिल फरमाया जो दुनिया की कोई चीज ऐसी नहीं है जिसका जिक्र कुरान पाक में ना किया गया, जिसके बारे में कुरान पाक में हमको हिदायत और तालीमात ना दी गई। आगे इरशाद है, वक़ालू मा लिहाज़ा रसूली याकुलु तामा व यमशी फिल अस्वाक़, और वो कहते हैं कुफार, मा लिहाज़ा रसूली, क्या हुआ है इस रसूल को कि वो याकुलु खाते हैं, खाना खाते हैं, यमशी और चलते हैं, फिल अस्वाक़ बाजारों में चलते हैं। यानी वो तो ऐसे रसूल है कि खाना भी खाते हैं, बाजारों में चलते हैं। हालांकि उनको ये मालूम होना चाहिए कि जितने अंबिया आदम अलैहिस्सलाम से लेकर हमारे सरकार मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक आए हैं दुनिया में, सारे अंबिया इंसान थे और सारे अंबिया खाते पीते थे, चलते फिरते थे। और नबी को इंसानी शक्ल में इसलिए भेजा गया, इंसानों में नबी भेजे गए इस वास्ते कि इंसानों को हिदायत करना था, इंसानों को तालीम देना था, इंसानों की रहबरी करना था, इंसानों को सारी बातें सिखाना था। तो इसलिए एक इंसान ही इंसान की तमाम जरूरियात को सब महसूस कर सकता है, उसके बारे में तमाम हिदायत बेहतरीन तरीके उसको दे सकता है। इंसान या कोई फरिश्ता होता तो इंसान के इंसानी जरूरियात से वाकिफ नहीं रहता, और उसकी तालीमात ऐसी नहीं होती जो इंसान उस पर अमल कर सके। तो लिहाजा जितने अंबिया अल्लाह ने भेजे हैं, सारे अंबिया इंसान थे, और इंसान की तरह वो खाते पीते चलते फिरते थे, ताकि वो इंसानों की रहबरी करने के लिए अच्छी तरह से कर सके और इंसान उनकी बात को समझ सके कि एक इंसान ही उनकी तरह इंसान है जो उनको उनकी भलाई के लिए नसीहत करता है। फिर आगे इरशाद है, लौला उनजिला इलैहि मलकुन फयकून माहु नज़ीरा, काश लौला क्यों ना हुआ ऐसा, वो कुफार का कहना है, क्यों ऐसा ना हुआ कि उनजिला नाजिल किया गया इलैहि उनकी तरफ मलक, एक फरिश्ता उनके साथ नाजिल होना था, फयकून और वो होना था, माहु उनके साथ नज़ीरा डराने वाला। यानी ये कहते हैं कुफार के रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साथ एक फरिश्ता भी रहना था, उन्हें भी हर जगह आप जो बोले उसकी तायद करते रहता ना, उन्हें भी डराते रहना था अज़ाब से। तो जब फरिश्ता आकर आपकी बातों की तस्दीक करते रहता तो हम जब मान लेते। ये सब वो तो किसी कीमत पर उनके किस्मत में ईमान नहीं था, और नहीं मानने वाले थे, उनमें के बास तो नहीं, बिल्कुल आखिरी वक्त तक नहीं माने हैं। और ये कहते हैं एक फरिश्ता क्या को नहीं आया उनके साथ। फिर उसके बाद आगे इरशाद है, वो कहते हैं आ युल्खा इलैहि कंजुन और तकुना लहु जन्नतुन याकुलु मिनहा, और युल्खा ऐसा क्यों नहीं हुआ, या कि डाला जाता उनके साथ, उनके पास एक खजाना, कंज माने खजाना, उनके साथ एक खजाना भी रहता ताकि वो अपने खजाने से आराम से जिंदगी गुजारते। और तकुना लहु जन्नतुन, या होता उनके लिए एक बाग, जन्नत के माने बाग है जैसा आपको मालूम है आप लोगों। और तकुना, और क्यों नहीं हुआ, या तो क्यों नहीं हुआ उनके लिए एक बाग साथ, या कुलु मिना, ताकि वो उसमें से खाते रहते थे बैठकर। ये सब इस किस्म की बेकार किस्म की वो लोग हुज्जत करते थे। फिर आगे इरशाद है, वखाला ज़ालिमुना इन तत्तबिउना इल्ला रजुलन मसहूरा, और वो ये कहते, वखाला ज़ालिमुना, और कहते हैं ये जालिम ये बात, इन तत्तबिउना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मानने वालों को ये कहते हैं, इन तत्तबिउना, तुम इत्तिबा करते हो, इल्ला सिवाय इसके और कुछ नहीं। एक आदमी है रजुल नौजुबिल्लाह मसरूर, जिन पर जादू किया गया, जादू के असर से वो नौजुबिल्लाह ऐसी बातें कर रहे हैं। तो इस तरीके से वो लोग
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में गुस्ताखी की ऐसी बातें करते थे कि उनके मानने वाले तो ऐसे। फिर आगे इरशाद अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है उन्जुरु उन्जुर कैफा ज़रबू लकल अमसालु फज़ल्लु फला यस्ततीऊन सबीला। उन्जुर देखिए, कैफा ज़रबू किस तरह मिसाल दी है उन लोगों ने, लका आपके लिए, हुजूर सासम को अल्लाह ताला फरमाते आपके लिए वो लोग ऐसी मिसाल देते हैं, फज़ल्लु जिसकी वजह से वो गुमराह हो गए, दलालत में पड़ गए, फज़ल्लु वो गुमराह हो गए, फला यस्ततीऊन आपस नहीं है उनके लिए कोई सबीला, कोई रास्ता, यानी हिदायत का कोई रास्ता उनके पास नहीं है, वो इस तरीके से गुमराह हुए हैं। तो लिहाजा अल्लाह ताला इस पहले रुकू में तौहीद के बारे में मिसालें दी हैं और रिसालत के बारे में, और कुरान कोई बंदा ऐसा कलाम नहीं कर सकता, ना बंदा ऐसा कलाम बना सकता है। तो अल्लाह ताला हम सबको हिदायत नसीब फरमाए और सारी दुनिया के इंसानों को हिदायत नसीब फरमाए कि वो इस बात को समझे और इस्लाम को कबूल करें। वाखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा अनिस वहशतिना फी क़ब्रिना, अल्लाहुम्मा अरहमना बिल कुरानिल अज़ीम वजअलहु इमामन व नूरन व हुदन व रहमा। अल्लाहुम्मा ज़क्किरना मिन्हु मा नसीना व अल्लिमना मिन्हु मा जहिलना वरज़ुक़ना तिलावतहु आना अल-लैलि व आना अन-नहार वजअलहु ली हुज्जतन या रब्बल आलमीन। आमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम।